دیگر مہمانان گرامی، آپ نے وقت نکالا، آج ایک ہسٹورک مومنٹ پہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، بہت شکریہ۔ میں جلدی سے بس ایک اوور ویو 2 منٹ میں دوں گا۔ یہ جو سیپلنگ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، یہ 2008 میں لگایا گیا تھا۔ ٹوڈے after the database has been reset in 2022, we have 9 million beneficiaries. 9 million beneficiaries who get 7,000 rupees per quarter, but from the current quarter, they'll be getting 8,500 rupees per quarter, and subsequently from the second quarter of this calendar year, they'll start getting 9,000 rupees per quarter, which is a 25% jump due to inflation. In addition to that, 400,000 of these 9 million beneficiaries are enrolled in the Benazir Nasho-Numa program, where a beneficiary, when she is pregnant, is given fortified food, and her child, newly born child, is given fortified food and handheld through this anti-stunting program for 1,000 days. اس کے بعد بے نظیر تعلیمی وظائف ہے، جس میں ان 9 ملین خواتین میں سے 3.2 ملین خواتین کے 6.5 ملین بچے رجسٹرڈ ہیں، جن کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے ٹو رجسٹر دیئر چلڈرن by incentivizing through additional cash. So that's the Benazir Talimi Wazaif, primary, secondary, higher secondary tak hand hold kiya jata hai. So it's literally from cradle to grave. Iske alawa hum logon ne transgenders ko include kiya hai positive tarike se. Quota hai unka ye disabled ka, اور اس کے علاوہ اب ہم نیو پیمنٹ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ان کو جو پیمنٹ کا طریقہ ہے وہ زیادہ آسان کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اوور ویو ہے۔ آج کا جو ایونٹ ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو اس ڈاکیومنٹری کی طرف کے تھرو دکھائی جائیں گی۔ اس کے بعد عرفانہ ملا صاحبہ اسٹیج سیکرٹری ماسٹر آف سیریمنیز آئیں گی، اور آپ چند سلیکٹڈ گیسٹس کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ سٹیج پہ آئیں۔ سو رائٹ ناؤ وی ول واچ دا ڈاکیومنٹری وچ ایکسپلینس the evolution from the National Socio-Economic Registry to a dynamic registry. And we have, I would like to acknowledge here the help that the German government has been extending to us as a development partner. The German ambassador is here, und wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung für unseres neues dynamischen Registers. Schönen Dank. Thank you very much. We'd like to have the documentary, please.
خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو گزارش کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں، اور اس پروکار تقریب کے مہمان خاص کوئی اور نہیں، آپ کے ہر دل عزیز پاکستان کے سب سے مایہ ناز لیڈر، چیف گیسٹ آف دا ایونٹ، آنریبل بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی، فارن منسٹر، گورنمنٹ آف پاکستان کو گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب میں گزارش کروں گی تصور بے نظیر آصفہ بھٹو زرداری، جو پولیو پروگرام، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا ہے، اپنے دل کے ساتھ اس پولیو پروگرام نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر گھر جا کے اس پروگرام کا آغاز کرنا، اس کی تشریح کرنے میں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی۔ Now I would request Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, to come on the stage. اب میں گزارش کرتی ہوں محترمہ شازیہ مری صاحبہ، جو اس ایونٹ کی ہوسٹ بھی ہے اور منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر پاورٹی ایلیویشن، سوشل سیفٹی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ہے، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں۔ مسٹر فیصل کریم کنڈی، منسٹر آف اسٹیٹ اور اسپیشل اسسٹنٹ آف پرائم منسٹر، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں۔ I would also request His Excellency Mr. Alfred Grenas, Ambassador to Pakistan, Federal Republic of Germany, to please come on the stage. اور مسٹر طارق ملک، چیئرمین نادرا، کو بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے۔ سینیٹر نثار کھڑو صاحب کو بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر میں سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی وہ لیڈر ہے جس کو دنیا کی ہر عورت سیلیبریٹ کرتی ہے، وہ عام مزدور عورت ہو یا پرائم منسٹر ہو۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر بے نظیر کی مثال دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عورت کس مقام پہ پہنچتی ہے تو بے نظیر کا نام لیتی ہے، اور بے نظیر کا وہ پروگرام ہے، بے نظیر کا وہ نام ہے، دیٹ از synonymous to women struggle, women's courage, women's empowerment۔ تو اس پروگرام کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے نظیر کو پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری دنیا اون کرتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی ہر عورت، پاکستان کا ہر مرد، پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر فرد بی بی صاحبہ کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ اور دھڑکتا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اس پروگرام کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والے آپ نے دیکھا خود مٹ گئے۔ بے نظیر کو ہم سب کو اون کر کے اس پروگرام کو، جو نام کو جو تحفظ ہے، اس کو ہمیشہ ملنا چاہیے، اور یہ پروگرام بی بی صاحبہ کے نام سے ہے اور اسی نام سے قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ یہ میرے کچھ اپنے جذبات تھے۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہماری بہت سی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو بینیفیشری ہیں، جو مستحقین ہیں، وہ خدا کے بات کریں گی، لیکن چند باتیں جو ہم نے اس 15 سال کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے محسوس کیے، وہ آپ کے نظر کرتے چلیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غریب کی مردم شماری نہیں ہوتی تھی۔ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لانچ ہونے کے بعد 2008 سے لے کے 2011 تک ایک انٹرنیشنل اسٹڈی پبلش ہوئی جس میں یہ کلیم کیا گیا کہ 40 لاکھ عورتوں کے شناختی کارڈ بنائے گئے۔ وہ 40 لاکھ عورتیں اس ملک کی مسنگ پرسنز تھی جس کو شناخت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لانچ ہونے کے بعد ملی۔ وہ اس اسٹیٹ کی، اس ریاست کی شہری ہونے بنی، اور اس کے بعد ان کے شہری حقوق دینا اس ریاست کا فرض بنا۔ اس پروگرام کے نتیجے میں
88% एक इंटरनेशनल स्टडी है कि 88% बेनिफिशरीज़ 28% जेके बेनिफिशरीज़ आहिनि उहे असांजूं बहिराड़ीअ जूं औरतूं आहिनि ऐं जेके बहिराड़ीअ जूं औरतूं आहिनि हिते सभु मौजूदु आहिनि उन्हनि जो घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ममनू हूंदो आहे हिन प्रोग्राम जे करे जेके घर खां ॿाहिरि कदम रखंदियूं हुयूं ऐं मारियूं वेंदियूं हुयूं हिन प्रोग्राम जे करे न सिर्फ़ु पंहिंजे भाइरनि सां पंहिंजे जीवन साथियुनि सां पंहिंजे बचड़नि सां उहे ॻोठनि खां शहरनि ताईं अचनि थियूं पर उन्हनि सां गॾोगॾु उहे वो प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती थी कि औरतें किसी की मिल्कियत है इस प्रोग्राम के साथ औरतों के हाथ में मिल्कियत आ गई अब उसको अपने भाई अपने बेटे साथ साथ लेके चलते हैं कलेक्शन पॉइंट तक और उनकी मोबिलिटी ऑफ स्पेस बढ़ी उसके साथ वो जो पेट्रियार्कल वैल्यूज थे वो जो पदरशाही समाज था उसके जो कल्चर था वो बहुत बड़ी तादाद में डाइल्यूट हुआ है मैं नहीं कहती कि ख़त्म हुआ है but it has been dilute greatly because of mobility of space given by बेनज़ीर income support program to the women. तो अब इतनी ज़्यादा तो औरतों के हवाले से जो भी स्टडीज़ हुई हैं there are 94 research articles published on बेनज़ीर income support program और वो 94 इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स क्लेम करते हैं कि इस प्रोग्राम ने फीमेल एम्पावरमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट में एक कलीदी किरदार अदा किया है उसके साथ साथ इसका जो वसीला तालीम है एक कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशो होता था हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे अब जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं उन बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशो 60% था और लड़कों का 40%। जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती है उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं माँ बाप को लड़कियों को कम तो स्कूल एडमिशन हुई है और बच्चे स्कूल में गए हैं। तीसरा इसका कंपोनेंट नशोनुमा है WFO की रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई है शी इज़ द पार्टनर इन दिस प्रोग्राम जिसमें जो सबसे बड़ा गुर्बत की वजह से स्टंट बच्चा पैदा होता है उसकी नशोनुमा उसकी माँ के लिए जो इलेक्टिंग मदर है जो हामला खातून है उसकी निगहदाश्त से लेके जो पहले 1000 दिन होते हैं बच्चे पैदा करने के 1000 दिन तक उस बच्चे की निशोनुमा का प्रोग्राम शामिल है। तो मैं ये समझती हूँ कि यह प्रोग्राम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पाकिस्तान का एक रोल मॉडल प्रोग्राम है जो ना सिर्फ सक्सेसफुली चला है लेकिन आगे बढ़ भी रहा है और एक्सपेंड भी हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई हैव जस्ट 5 मिनट्स और मैंने 5 मिनट्स में आई होप आई हैव कंक्लूडेड। अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे पास इस प्रोग्राम की कुछ मुस्तहक खवातीन आई हुई हैं मैं चाहूँगी कि वो आके खुद आपसे मुखातिब हो और अपना किस्सा अपनी ज़बान से आपको बताएं। सबसे पहले जुलेखा यहाँ पे मौजूद है अपने बच्चे के साथ। जुलेखा अगर आप आएँ और कुछ बात करें इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियारी के रहने वाली हूँ जुलेखा बलोच। लेकिन बेनज़ीर के पैसे बेशक हम लोगों को मिल रहे हैं हर 6 महीने हर 3 महीने के बाद। मेरे बच्चों का मेरा घर भी सही चल रहा है लेकिन राशन वगैरह भी उसी पैसों से मैं ले रही हूँ। लेकिन बस्ता वगैरह बच्चों का स्कूल का भी पैसे मुझे मिल रहा है। बच्चों का वर्दी होगा चप्पल होगा बस्ता भी इसी पैसे से लेना है मुझे। बच्चे का खर्चा भी इसी पैसों से देना है जो बिलावल हम लोगों को दे रहा है। बिलावल का बिल्कुल अल्लाह इसको जिंदगी दे। आमीन। जुलेखा के बाद अब शमशाद सईद हमारी एक खातून है जो कराची से वो भी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तकीन में शामिल है। शमशाद आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। शमशाद ये माइक बात कर रहा है आप इस पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशाद सईद है। मैं PNT कॉलोनी में रहती हूँ।
ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. ہمیں کسی نے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے آپ کو کافی سہولت دے رہی ہے. تو میں نے معلومات حاصل کری, پھر جو ہے میں نے اپنی رجسٹریشن کرائی. پھر شکر الحمدللہ مجھے پیسے ملنے لگے وہاں سے, اور مجھے بچوں کی بھی وظائف ملنے لگے. اور پھر میں دوسرے لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی آئے. آپ کے بچے اب اسکول جا رہے ہیں اس کے بعد؟ جی جی الحمدللہ وہ میرے بچے جا رہے ہیں اسکول. بیٹی بھی جا رہی ہے؟ بیٹی بھی جا رہی ہے, اور میرے پہلے سے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ کی میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں بہت ہیلپ ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور شکریہ. ٹھیک ہے, صحیح تھا. اوکے, شکریہ. بہت شکریہ آپ یہاں آئیں, اتنی اسٹیج پہ بات کی آپ نے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اب طاہرہ کو میں کہتی ہوں کہ آ جائیں. السلام علیکم. ہاں تھوڑو مائک سان ویجو تھی. السلام علیکم. میں نالو طاہرہ لیاری لائن والی آئی. مطلب شور تھوڑو مائک جے ویجو بھی ॻाल्हाए. غریب आहीं, झाड़ू पोछो लॻाइण वारी आहीं. शोर मतिलबु फाले जे पहिरीं स्कूल बच्चा न पढ़ाया आहिनि, हाणे बेनज़ीर फंड मिलियो आहे. बच्चा 3 स्कूल वञनि था, धीअरूं बि पढ़नि थियूं, पुट बि पढ़नि थियूं. इन बेनज़ीर शुक्रिया अदा कनि जो असांजे ग़रीबनि जी मदद कयईं. असां ग़रीबनि प्रोग्राम ॾिनई. शोर कमु न आहे, फाले जे पाण झाड़ू पोछो करी बेनज़ीर पैसा जो इंतज़ार 3 महीना मिलनि. या मां घरे ख़र्चो थिए, फाले जे गोरियूं थियनि, ॿधियूं स्कूल पढ़नि थियूं, स्कूल बैग कपिड़ा मपड़ा सभु. ग़रीबी असांजी थोरी कम थी आहे. शुक्र अदा कनि बेनज़ीर आप जी. पढ़ी थी? न हाँ पढ़ी ना है. बच्चियां पढ़ा रही? बच्चियां पढ़ाई है, दोनों बच्चियां भी पढ़ती है, बच्चा भी पढ़ता है. थैंक यू. जब मैं तारा से बात कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ी थी, लेकिन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे की वजह से मेरी बच्चियां पढ़ रही है, वो मेरी तरह झाड़ू पोछा नहीं करेंगी. हाणे मां दिलशाद खे चवंदसि त हिते वेठी आहे. दिलशाद गदाब टाउन खां आई आहे, उहा अचे ॻाल्हाईंदी. हाँ सिंधी में का ॻाल्हि. अस्सलाम वालेकुम. असां ग़रीब हुयासीं, गडाब टाउन रहण वारा आहियूं, जंगल इलाइक़े में रहंदा आहियूं. लकड़ियूं काटे ॿारनि जो सुफ़र गुज़र कंदा आयासीं, वरी ॿार बि पढ़ायासीं. बेनज़ीर प्रोग्राम जा पैसा मिलंदा हुआ, उन्हनि मां ॿार पढ़ाए. हींअर हिन मंज़िल ते मुंहिंजी धीउ मूंखे वठी आई आहे. तव्हांखे धीउ खे त नौकरी मिली आहे? हा उन आंदो आहे. मां ग़रीब हुयसि, मां दुआ जी असां लकड़ियूं काटे बिल्कुलु असांजा हथ पटियल ई. अब ये शमशाद कह रही है कि मैं लकड़ियां काटती थी, और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे से ना सिर्फ मेरी बेटी पढ़ी है, लेकिन आज उसको जॉब भी मिल गई है. बहुत बहुत शुक्रिया. ये स्टेटिक्स में बयान नहीं हो सकता. ये वो जज्बात हैं, ये वो बातें हैं जो ज़बान से बयान होती है और दिल से महसूस होती हैं. तो ये ख़वातीन आके, ये चंद 4 ख़वातीन हैं. ऐसी 9 मिलियन औरतें हैं, और एक एक औरत की एक कहानी है, और एक एक ख़ानदान की एक कहानी है जो इस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए चल रहे हैं. अब मैं गुजारिश करूंगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन मोहतरमा शाजिया मरी, जो ख़ुद एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखती है, जो इन ख़वातीन के साथ उठती बैठती है, इनके साथ चलती है, इनके जदोजहद में शामिल होती है, और शायद मैं कहूँ कि जिनका नफ्स पे हाथ हो, उनको पता है कि इस खातून के दिल में क्या है और ये किस करब से गुजर रही है. तो शी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर दिस पोस्ट. आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहतरमा शाजिया मरी. बेहो मुंहिंजी चेयर ते प्लीज़. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले तो मैं स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि आज उन्होंने अपनी इतनी मसरूफ़ स्केड्यूल और तमाम तर जो एक्टिविटीज़ जो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एक बार फिर जो वक़ार पाकिस्तान का गुज़िश्ता चंद बरसों में जिसको नुकसान पहुंचा, उसको बहाल करने के लिए जुटे हुए हैं. अपनी उन तमाम मसरूफियात में से उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया और वो यहाँ तशरीफ़ लाए. सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट. और उनके साथ असीफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा हैं,
जो मेरी कोताही ये थी कि मैंने उन्हें कहा नहीं था आने को, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या इवेंट है और उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज आ रही हैं, तो ये उनका अपना फैसला था कि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगी. तो आई वांट टू स्पेशली थैंक असीफा भुट्टो जरदारी साहिबा फॉर हर प्रेजेंस हियर टुडे. सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ. और साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर सेनेटर निसार खोड़ो साहब, जो एक नाम है, किसी से ढका छुपा नहीं है, इनकी तारीफ जितनी कम की जाए वक्त अलाउ नहीं करेगा, लेकिन थैंक यू निसार साहब फॉर बीइंग हियर. उनके साथ बैठे हैं नादरा के चेयरमैन हैं तारिक मलिक साहब जो तशरीफ़ लाए हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ. नादरा ने बहुत ताउन किया है, एक अरसे से हमारे साथ नादरा का ताउन है जिसकी बदौलत हम जो है इतना सारा काम कर सकें. सो आई वांट टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ नादरा एंड आई वांट टू वेलकम चेयरमैन नादरा हियर टू दिस इवेंट. साथ में एम्बेसडर मौजूद हैं, जर्मन एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है, इस्लामाबाद से वो आए हैं. मैं जर्मन एम्बेसडर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं. इसके साथ मैं एक ख़ास शुक्रिया अदा करूँगी प्रोफेसर अरफाना मल्ला साहिबा का, जो सिंध यूनिवर्सिटी की एक मायानाज हस्ती हैं, एक ऐसी प्रोफेसर हैं जो सिर्फ एकेडमिकली अपना काम नहीं करती बल्कि मुआशरे के अंदर जो एक औरत होने का फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है, उसको बहुत अहसन तरीक़े से निभा रही हैं. मैं अमूमन इनके साथ इन टच रहती हूँ ख़वातीन के मसाइल को लेकर, और मैंने इनसे कहा कि गो ये जो आपको मैं काम दे रही हूँ या फेवर आपसे मांग रही हूँ, ये आपके लिए आपके सामने बहुत छोटा है, लेकिन आप जैसी शख्सियत को मुझे सेंसिटाइज करना नहीं पड़ेगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि औरत के क्या मसाइल हैं. तो मैं इनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि ये हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए. तो बहुत शुक्रिया अरफाना मल्ला साहिबा. यहाँ मौजूद मेरे जो बड़े स्पेशल गेस्ट्स हैं, तमाम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और अब जो डायनामिक रजिस्ट्री होने जा रही है उसके अंदर जो हमारी नई टीम आई है, उन्हीं बेनिफिशरीज़ की फैमिलीज़ की जो बेटियां हैं वो यहाँ बहनें हैं, मौजूद हैं, और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, मुख्तलिफ एजेंसी से यहाँ नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है. मैं देख रही हूँ यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग हैं, GIZ जो हमारा पार्टनर है डायनामिक रजिस्ट्री में, उसके लोग हैं. हमारे साथ नेशनल पावर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम की जानिब से नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, SRSO की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, और मुख्तलिफ इदारों से मैं शायद नाम ना भी ले पाऊँ, वक्त की किल्लत है. मैं चाहती हूँ कि जल्दी जो है वो हम स्टेज दें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को. तो मैं हायल नहीं होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ. अपनी ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस का शुक्रिया अदा करूँगी, ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूँगी, और जो कई लिखने पढ़ने वाले लोग पिंडाल में आए हैं, मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बशमूल मीडिया के दोस्तों का. मैं समझती हूँ कि इस दौर में जहाँ सिक्योरिटी एक बार फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना है, मैं शाबाश पेश करती हूँ तमाम लोगों को जो इस रिजॉल्व के साथ निकलते हैं कि हमने इस दहशतगर्दी को नाकाम बनाना है, हमने इस दहशतगर्दी का जो सर एक बार फिर उठ रहा है, हमने इसे नेस्तो नाबूद करना है. आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी निशाने पर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है. ये दहशतगर्द इस मुल्क के अंदर जो एक आज़ाद सोच है उसको देखना ही नहीं चाहते, और इस आज़ाद सोच का प्रचार अगर कोई दीदा दिलेरी से करता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है. मैं इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहूँ, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 2008 से शुरू हुआ और आज तक कायम व दायम है, इसका नाम एक ऐसी शख्सियत के नाम पर है जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया. अगर बेनज़ीर हमारे लिए सड़कों पर आती है जमहूरियत के हुसूल के लिए तो ठीक है, अगर वही बेनज़ीर अपने बच्चों को छोड़कर मुल्क वापस आती है डिक्टेटर का सामना करने के लिए तो ठीक है, अगर वही बेनज़ीर भुट्टो
अगर उन जालिमों के हाथों शहीद होती है तो ठीक है, लेकिन अगर बेनजीर भुट्टो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हो तो वो खुटकता है। मैं आज बबांगे दोहल ये कहना चाहती हूं कि ये नाम ना सिर्फ एक ऐसी बहादुर खातून का नाम है, बल्कि ये हर उस बहन बेटी के लिए मिसाल है जो खुद को बेनजीर समझती हैं, क्योंकि हम औरतें, हमारी मिसाल कोई नहीं है, हम अपने आप एक मिसाल हैं और हम बेनजीर हैं। लिहाजा मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिस कमिटमेंट के साथ 2008 में शुरू किया गया उसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। ये हर सियासत से ऊपर है, ये हर तफरीक से ऊपर है। अगर कभी किसी ने इससे कोई सियासी फायदा हासिल किया तो मेरा ये ख्याल है कि वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो गरीब तरीन अवाम है, जो गरीब तरीन घराने हैं, ये प्रोग्राम उनकी दुआओं से चल रहा है। तो अगर कभी किसी ने इससे कोई खिलवाड़ किया तो उसका अपना अंजाम बुरा होगा। आपको याद है कि कुछ बरस पहले इस प्रोग्राम से लाखों की तादाद में लोग निकाले गए और बहुत सारी बातें की गई, बयानबाजी की गई, लेकिन मेरी नजर में ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। शायद किसी एक या दो शख्स पे किसी का एतराज हो, लेकिन लाखों की तादाद में मुस्तहकीन को इस प्रोग्राम से फारिग करना, निकाल देना, ना सिर्फ उस गरीब अवाम के साथ दुश्मनी थी बल्कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी थी। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि हमने इस अमल को रिवाइज किया है, इसको हमने खोला है और जो हरबे इख्तियार किए गए लोगों को निकालने के, उन हरबों से छुटकारा हासिल किया है। ये अमल थोड़ा स्लो है उनको प्रोग्राम में लाने का, क्योंकि कहीं अब मुस्तहकीन नहीं होंगे तो वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त का जो एक तखमीना है वो तकरीबन 61,000 लोग वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में और हम लाख के करीब अब लाने वाले हैं। तो ये आप लोगों की वो जो आहें थी, जो आपकी चीखें थी, वो आप ही के आपका दर्द समझने वाले लोगों ने सुनी और उस पर अमल किया। आपका एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसी शुक्रिया और अप्रिशिएट करूंगी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम को। यहाँ मौजूद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सेक्रेटरी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी और उसके साथ साथ जो पूरी टीम है, जो हमारे डीजीज हैं, बिलखसूस जो हमारी NSER की टीम है, उनके डीजी हैं, उनकी पूरी टीम है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देयर वर्क, नॉट ओनली आज के लिए या इस डायनामिक रजिस्ट्री के अमल के लिए, बल्कि जो फ्लड्स में आप लोगों ने काम किया है। आई वांट टू अप्रिशिएट ये आपने जो मेहनत की है। आप ना सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना सिर्फ वो तनख्वाह उठाते हैं, आप लोगों की दुआ बटोरते हैं और दुआ से बढ़कर कोई अजर नहीं है इंसान के लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं अब इरफाना मल्ला साहब को फिर अपनी जिम्मेदारियां सौंपने के लिए निभाने के लिए बुलाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। ये जो डायनामिक डेस्क खुलने जा रहा है, जैसे शाजिया ने बताया, अभी हम भी कुछ देहातों में गए हुए थे तो 80 साल की बेवा औरतें जिनका कोई कफील नहीं है, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले पैसे मिलते थे, वो बता रही थी कि हमारे बंद हो गए। और मैंने शाजिया को कॉल करके भी कहा कि ऐसी 100 औरतों से तो मैं मिली हूँ और बहुत सी मुस्तहकीन हैं, क्योंकि गुर्बत बहुत बड़ी है, उन तक कैसे अप्रोच किया जाए। तो किस तरह वो सर्वे अगर 10 साल के बाद हो, अब ये डेस्क जो तहसील लेवल पे बन गई हैं, कोई भी औरतों को लेके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वो दोबारा इस नेट में आ सकती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी आसानी पैदा हो गई है ऐसी ख़वातीन के लिए जो बीच में अप्रोच करती हैं कि हमारे लिए कुछ करें। और हमें पता है कि अब तहसील पे एक इनकम सपोर्ट टैक्स बनी हुई है, हम उन ख़वातीन को अगर वहाँ पहुँचा देंगे तो कम से कम उनका डेटाबेस बन जाएगा और वो उनका इनकम सपोर्ट कार्ड जो बंद हो गया था वो रिलीज़ हो जाएगा। सिंध के हवाले से बहुत बड़ी जो अभी फ्लड का क्राइसिस आया, सिंध में जितनी तबाही आई और उसके बाद
जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई सिंध गवर्नमेंट ने, जिस खुश असलूबी से सैयद मुराद अली शाह साहब के सरबराही में उसको फेस किया है, वो काबिल तहसीन है। मैं दावत देती हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को कि वो आएँ और आके अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, फेडरल मिनिस्टर पावर्टी एलिविएशन मैडम शाज़िया मरी साहिबा, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर निसार खोड़ो साहब, फैसल कुंडी साहब, SAPM, His Excellency Alfred Grenes, Ambassador of Germany, तारिक मलिक साहब, यहाँ बैठे हुए असेंबली के मेंबरान, वज़रा और ख़ास तौर पे जो BISP के बेनिफिशरीज़ ख़वातीन हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कि आज ये प्रोग्राम इन्होंने जो स्टैटिक से डायनामिक रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, यानी हर वक्त ये रजिस्ट्री खुली होगी और लोग नई ख़वातीन जो मुस्तहिकीन हैं इसमें शामिल होंगे, उसका इफ्तिताह रखा है। चेयरमैन साहब उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और यहाँ सिंध असेंबली की तारीख़ी बिल्डिंग में सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची में ये इवेंट रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने इसका क़याम डाला था और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये दुनिया का सबसे बेहतर सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम कहलाने लगा और 2013 तक इसके अंदर, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त सदर जरदारी साहब कई इवेंट्स उन्होंने किए जो उनकी सोच थी इसके बारे में कि इसको कितना आगे ले जाएंगे, किस तरीके से जो मार्जिनल जो हमारे मुस्तहिकीन हैं उनको इसमें शामिल करेंगे, प्लान था। लेकिन फिर 2013 के बाद तकरीबन 9 से 10 साल फेडरल गवर्नमेंट की पेट्रनेज इससे ख़त्म हो गई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ BISP का कि उन्होंने जैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में आए और चेयरमैन साहब सदर जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक मिनिस्टर साहिबा ने जो मिसिंग विमेन थी उनको वापस इंक्लूड किया। इस वक्त तकरीबन 23 लाख बेनिफिशरीज मुस्तहिकीन हैं, मुस्तहिक ख़वातीन हैं जो कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में सिंध के अंदर उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा तालीमी वज़ाइफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दिए जा रहे हैं। 107 नशोनुमा फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जिसमें तकरीबन 1,36,000 मुस्तहिक ख़वातीन हैं जिनको ये सहूलत मिल रही है और हम सूबा सिंध की गवर्नमेंट BISP के शुक्रगुज़ार हैं कि वो सारी इंटरवेंशंस यहाँ कर रही है। चेयरमैन साहब की हिदायत पे हुकूमत सिंध ने भी जब ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी उन्होंने ये मार्जिनलाइज सोसाइटी जो ख़ास तौर पर सोशल प्रोटेक्शन के काम ख़त्म कर दिए थे और वो अपने अजीब व गरीब नए प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे थे, तो चेयरमैन साहब ने हुकूमत सिंध को हिदायत की और हमने पहले एक सोशल प्रोटेक्शन यूनिट सिंध में खोला और अब हमारे पास एक सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है जिसके लिए हम कानून भी बना चुके हैं। हमारा सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो उस कानून के तहत बनी है, उसने काम शुरू किया है और वो BISP से ख़ास तौर पे अभी और ख़ास तौर पे NSCR से गाइडेंस लेती है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है। हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने डेटाबेस को इतना मजबूत किया जाए और उन मुस्तहिकीन तक, उनके घर तक हम पहुंच सकें। इस सिलसिले में हम जो हामला ख़वातीन और बच्चे जो
ابھی منسٹر صاحبہ نے بھی بتایا جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم ان خواتین کو 20,000 روپے اور ہم نے 2 ڈسٹرکٹس میں یہ شروع کیا ہے تھرپارکر اور عمر کوٹ اور تقریباً 40,000 بینیفیشریز 40,000 مستحق خواتین اس میں انکلوڈ ہیں. اب ہم اس کو پورے سندھ میں جو ہے پھیلا رہے ہیں اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام بھی اس میں لون پروگرام بھی منظور کرایا ہے اور یہ تقریباً 48 ارب روپے کا ایک پروگرام ہے جس میں 17 لاکھ خواتین ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس پہ کام ہمارا سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ تیزی سے کر رہا ہے اور جیسے میں نے کہا ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد لے رہے ہیں اور میں امید کرتے ہیں کہ نہ صرف ابھی لیکن آگے جا کے بھی فیڈرل گورنمنٹ اور BISP صوبوں کو مدد کرے گی. یہ پلان شروع میں صدر زرداری نے بھی کیا تھا. مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ جب صدر زرداری حکومت میں تھے صدر تھے پاکستان کے 2008 سے 2013 تک تو انہوں نے صوبوں کو بھی کہا تھا کہ BISP کے پیٹرن پہ آپ اپنے پروگرام شروع کریں اور ہم نے شروع کیا تھا سندھ کے اندر لیکن پھر گورنمنٹ جانے کی وجہ سے ہمارے جو ایشوز آئے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے اور پھر ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پہ ان کی ہدایت پہ یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا ہے. میں جیسے کہا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب کو سنیں اور میں چیئرمین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی کو چوز کیا اس ایونٹ کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں جو ساری بینیفیشری خواتین ہیں جو ادھر جو مستحقین آئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ یہاں سے اسمبلی آئیں اور اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو. شکریہ بہت بہت CM صاحب. کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ان کو سیاست وراثت میں ملی. وراثت میں کیا ملا تھا؟ شہادتیں ملی تھیں, جیلیں ملی تھیں, نانا کی پھانسی لگی لاش ملی تھی, ماں کی گولی لگی لاش ملی تھی, باپ کی جوانی جیل میں گزری تھی. بلاول کی وراثت میں کوئی کراؤن نہیں تھا, کوئی سونے کا تاج نہیں تھا, کانٹوں کا راستہ تھا جس پہ چلنا تھا. پھر بھی یہ کنونشن تھا, یہ نعرہ تھا کہ اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کے غریب کے لیے اور بے نظیر کے چاہنے والوں کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان کا وہ نوجوان لیڈر جو عمر میں اس وقت پاکستان کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں ان سب سے چھوٹا ہے, لیکن اپنی سیاسی بلوغت میں, اپنی پولیٹیکل میچورٹی میں, اپنی معاملہ فہمی میں, ان کی جو سیاسی سوچ ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری نے ان سب سے زیادہ میچورٹی شو کی ہے اور ان سب سے زیادہ اپنی سیاسی بلوغت کا نہ صرف جھنڈا گاڑا ہے لیکن آج جو ان کے مخالف ہے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ سارا سیاسی وزڈم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا ہے جو یہ پورا ہائبرڈ نظام کو ناکام اور ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. وہ نہ صرف ایک کامیاب سیاستدان ہے لیکن ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ اس وقت پوری دنیا نے پاکستان کی جو فارن پالیسی کو اور پاکستان کی آواز کو دوبارہ ایک آواز ملی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے جو تحرک ہے, کریڈٹ گوز ٹو دا فارن منسٹر پاکستان بلاول بھٹو زرداری. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز گیو دا وارم ویلکم آپ سب کے, ہم سب کے ہر دل عزیز لیڈر بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین پاکستان دلوایا, جس نے
पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। हम वो जमात है जिसने हर तबका को अपना हक दिलवाया, हर सूबा को उनका हक दिलवाया, अपना वसाइल का मालिक बनाया। मगर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का जदोजहद देखता हूँ, तो अगर एक ऐसा काम है जिस पे हम सबसे ज्यादा फख्र करते हैं, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये इनकलाबी प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन, नजरिया और मंशूर की हिस्सा था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी दिनों जब वो पाकिस्तान की वापसी की तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2007 पे की मंशूर पे काम कर रही थी। और उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये नजर आ रही थी कि मेरे मुल्क में बहुत गुर्बत है, मुल्क में पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान के गरीब अवाम तकलीफ में है। तो मैं ऐसे प्रोग्राम बना के लाऊं जो पाकिस्तान के अवाम की असल मसाइल का हल करे। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मंशूर में हमें यह कॉन्सेप्ट दी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त जब वो पाकिस्तान की जमहूरी हकूक के लिए जदोजहद कर रही थी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों के खिलाफ जदोजहद कर रही थी, और सबसे भरकर अपने गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रही थी। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी मिली कि वो मुल्क में हुकूमत संभालें, तो ये सदर ज़रदारी ने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के पूरा निज़ाम से लड़ पड़ा कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाना है। और जैसे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से अवाम के मफाद के लिए पैसा निकलवाना तो बड़ी बात है और बड़ा मुश्किल काम है, मगर ख़ास तौर पे वो पैसा गरीब अवाम को दिलवाना, गरीब तरीन औरतों को दिलवाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। इस मुल्क के हर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टें 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 करते हैं, आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस वक्त खिलाफ थे, इसकी मुखालफत करते थे। हमारे सारे जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो मुखालफीन हैं, उन्होंने तो डट के इस प्रोग्राम का मुखालफत किया। वो कहते थे कि हम मुल्क के अवाम को भिखारी बना रहे हैं, और हम कहते थे नहीं, हम मुल्क के अवाम को, मुल्क के गरीब तरीन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। और इस पूरा प्रोपेगेंडा के माहौल में सदर ज़रदारी हर हफ्ता अपना प्रेसिडेंट हाउस में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वीकली मीटिंग्स करवाता था, और 1 साल के अंदर ही अंदर मुल्क भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा गरीब तरीन औरतों को पहुंचने। हम पे तनकीद हुआ कि इससे करप्शन होगा, तो तारिक मलिक साहब आज भी यहाँ मौजूद हैं, उन दिनों में भी शायद वो नादरा में था। बहुत से एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल दुनिया जो है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इदारे के साथ मिलके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया,
ट्रांसपेरेंट तरीन प्रोग्राम बनाया जो पूरी दुनिया आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशंस से लेके वर्ल्ड बैंक है वो मानते हैं कि यह शफाफ तरीन इदारा है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम फ्लड्स के दौरान दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुतासरीन के लिए पैसा जमा कर रहे थे तो पाकिस्तान का किसी इदारा में से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अदारा पे सबसे ज्यादा एतमाद था दुनिया का। वो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को मदद करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान का शफाफ तरीन, ट्रांसपेरेंट तरीन इदारा अगर कोई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है, सोच ये है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, जो पाकिस्तान के पासमानदे इलाकों से ताल्लुक रखने वाले औरतें हैं, जिनका अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। पूरी दुनिया में दो किस्म के सियासी जमातें हैं, दो मुआशी पॉलिसीज का मुकाबला होता है। एक ये सोच रखते हैं, एक ऐसे सियासी जमातें हैं, एक ऐसा मुआशी पॉलिसी चलाने वाले हैं जो समझते हैं कि अगर आप अमीरों को और अमीर बना दें तो किसी न किसी तरीके से गरीब तक वो पैसा भी पहुंचाए। दुनिया भर में कोई ऐसी सियासी जमातें हैं जो सोचते हैं कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा होता है। मगर जो पॉपुलेशन है अमीर तबका का हर मुल्क में, वो तो थोड़े ही लोग होते हैं। वो जितना भी एम्प्लॉय करे, वो जितना भी अपने बिजनेस चलाए, वो पूरा मुल्क को तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। और हमने ये देखा है कि अमीर आदमी के पास जितना भी पैसा होता है वो उतना ही कंजूस होते हैं। वो पैसा जो है वो तो अपना जेब में जाता है, फिर वो बैंक अकाउंट में रखते हैं और इतना पैसा उनके पास होते हैं कि वो बैंक अकाउंट्स में रखा ही जाता है। वो पैसा उनके लिए पैसा कमाते हैं, किसी को रोजगार दिलवाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो सियासत है, ये जो मुआशी सोच है, जो दुनिया भर में अफसोस के साथ छा गया है, ये एक फ्लॉड अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। और अगर आप वही पैसा जो आपने अमीरों को देना था आप गरीबों में बांटे, कमजोर तरीन तबकात में बांटे, वो 1000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकता है। अगर वही पैसा निचली तबका के जेब में आता है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो तो उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में, अपना जेब में, अपना सेफ में या कहीं ऐसे नहीं रखते हैं, वो उसको खर्च करते हैं। और खर्च करते हुए वो तो अपने जो मसले हैं उनमें तो कमी आता है, मगर पूरा पाकिस्तान की, पूरा मुल्क का मईशत को उससे फायदा होता है। इसलिए वो उस पैसा से कहीं वो अपना राशन लेंगे, कहीं वो किसी दुकान से कुछ अपने बच्चे के लिए खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, कहीं कोई कपड़ा के दुकान पहुंच पे बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे, घर चलाने का सामान के लिए उसी पैसा से लेंगे। तो ना सिर्फ उस औरत को फायदा होता है, मगर वो छोटे जो बिजनेसेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका भी बिजनेस चलता है। अगर उनके पास पैसा आता है और बहुत शुक्रिया, हमारा माफी मान ले, ऐसे हो जाते हैं,
آپ بھی جذباتی لوگ ہیں اور ہمارے لوگ بھی بہت ہی جذباتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ہوگا. اب جہاں تک میں بات کر رہا تھا تو دیکھیں اگر یہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں کو تعداد میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہزاروں لوگ دکانیں جاتے ہیں, ان بزنسز کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور پھر پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچواتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں یا وہ معاشی پالیسی جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرتے ہیں وہ انقلاب تو ان کو زندگی میں لے کر آتے ہیں اور پورے ملک کا معیشت چل پاتا ہے. یہی جب مہنگائی تھا, بے روزگاری تھا, غربت تھا, جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں حکومت سنبھالی تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو آج بھی مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, معاشی بحران ہے, اور ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ کے مطابق کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ, جتنا پیسہ دیا جا رہا ہے میرے خیال میں تقریباً 9,000 روپیہ تک پہنچ جائے گا, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہے ان کا تعداد میں اضافہ, یہ دونوں کام کرنا بہت ہی ضروری تھا تاکہ اس مہنگائی کی دور میں, اس معاشی بحران کے دور میں اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, مدد پہنچا سکتے ہیں تو وہ اس ملک کے غریب ترین عورتیں ہوں, اور اس مدد کے ساتھ ہم نہ صرف ان کو مدد پہنچا رہے ہیں مگر ہم ملک کی پوری معیشت کو مدد پہنچا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی پروگرام ہے, ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ جب شروع کیا گیا اس میں نہ صرف وظیفہ کا کانسیپٹ تھا مگر ساتھ ساتھ وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, اور مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان کا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپریہنسو ٹول بن جاتا. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بھی نام بنا ہوا ہے, جو پہلے وسیلہ تعلیم تھا, اسی کے تھرو نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ریگولر پیسہ ہے وہ جا رہا ہے مگر وہ عورتیں جو اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے ان کو مزید سپورٹ دیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف ان عورتیں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے مگر ان کے بچے کے آنے والے نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہہ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا جو آنے والے مستقبل ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے, اس قسم کی منصوبے کی وجہ سے آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور اسی پروگرام کے تھرو وہ تو تعلیم کا حصہ تھا, جیسے آپ کو سب کو پتا ہوگا آپ کی پورا پاکستان میں جو نیوٹریشن کا ایشو ہے, میل نیوٹریشن کا ایشو ہے, بھوک کا مسئلہ ہے, جس کا نتیجے میں بچوں کے صحت پہ ریپریکاشنز ہوتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے میں بہت خوش ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ ہر بچہ کا جو پہلا 1000 دن ہے اس میں ان کو سپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو صحیح کھانا دیا جائے, صحیح میڈیکل سپورٹ دیا جائے. اور اگین ایک اور طریقہ کار ہے کہ آنے والے نسلوں کو ہم نہ صرف مدد کریں مگر ان کو صحت یاب کروایا جائے.
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा है कि हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में ऐसा कोई दूसरा मंसूबा नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जब एक सानिया होता है, एक पूरा कौम पे मुश्किल वक्त आता है और हमने अवाम को मदद पहुंचाना है, तो मदद पहुंचाने के लिए कोई और तरीका नहीं, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है। और चाहे वो कोविड के दौरान, आलमी वबा के दौरान मजदूरों को और गरीब तरीन लोगों को जिन्होंने जो रोजगार से महरूम था इन दिनों में, उनको मदद पहुंचाना की बात आए तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू वो मदद दिलवाया गया। सैलाब के दिनों में जब कोई तरीका नहीं था और इतना बड़ा तादाद में हमने किसी न किसी तरीके से इतने सारे लोगों को फौरन मदद पहुंचाना था, तो कोई और तरीका नहीं था। और एक अगर कोई तरीका निकला तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, कि वो मुश्किल तरीन दिन में हम 25,000 रुपीस जो है वो सैलाब मुतासरीन को पहुंचा सकते थे। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम समझते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डायनामिक सर्वे शुरू किया जा रहा है आज, वो एक मज़ीद इनकलाबी कदम है। एक इससे ये होगा कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एवरी सो ऑफन कि ये पूरा का पूरा मुल्क का सर्वे किया जाए, और हर वक्त मुल्क भर में ये सर्वे चलता रहेगा। हर यूनियन काउंसिल में एक दफ्तर होगा और जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनिफिशरी होना चाहिए मगर वो किसी भी वजह से नहीं है, चाहे उनका नाम गलती की वजह से और निकाला गया या मुआशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शायद पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज बने के वो उसमें नहीं आते थे, लेकिन ये मुआशी बहरान की वजह से और पूरी दुनिया में जो सब कुछ महंगाई और ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो अगर अब वो हकदार बन चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वो बेनिफिशरी बन सकते हैं, तो वो अपने यूनियन काउंसिल में जाके, दफ्तर में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वजारत है, सूबाई हुकूमतों जो है, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और मुल्क भर में ऐसा मुहिम हमें चलाना चाहिए ताकि ये आगाही मुहिम हो, लोगों को बताया जाए कि ये डायनामिक सर्वे चल रहा है और जाए आप अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुंडी साहब से, शाज़िया मरी साहिबा से, वज़ीर आला सिंध से और बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं कि वो इस फिल फोर वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करें ताकि इस मुआशी बहरान में भी, इस मुआशी के जो मुश्किल वक्त है, इस दौर में भी हम आवाम का मदद कर सके। और मैं शाज़िया मरी साहिबा की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तारिक मलिक साहब का, पूरा हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, सब की हमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन दिनों में इस मुआशी बहरान में ये फ़ैसला किया गया कि 25% इजाफ़ा होगा इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में, और इंशाअल्लाह ताला हर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी को 25% मज़ीद ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि इस मुश्किल वक्त में वो इन हालात का मुकाबला कर सके। अब मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से इसलिए ये जो सैलाब आए, बहुत से लोग मुतासिर हुए, ख़ास तौर पे जो ज़राए मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनके पास बहुत छोटा रकबा है ज़मीन का, उनके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट प्रोग्राम
لانچ کیا جا رہا ہے جس میں ان کے سیٹ کا جو کاسٹ ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اس لیے کہ کوئی ویکل نہیں تھا اس پروگرام کو، اس ذرائع معیشت کو، ہمارے ہاریوں کو، کسان کو مدد پہنچانے کے لیے، تو سندھ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ پیسہ جو ہے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد سیلاب متاثرین کو، خاص طور وہ جو چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے ہم کریں گے، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلاب ہے، ہم نے اس انقلاب کو جاری رکھنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو سیاست میں اس لیے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم پرو جمہوریت ہیں، ہم تو صوبے کے حق کے لیے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست کیا تو روٹی کپڑا اور مکان ہمارا نعرہ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست شروع کی تو غریب عوام کو معاشی فائدہ پہنچانا، معاشی انصاف دلوانا، اور یہ ہمارا مقصد تھا۔ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا گیا۔ نا ہم کیا کریں کہ جب ہم غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، مزدور، کسان، سفید پوش طبقہ، غریب ترین لوگوں کے لیے جب یہ انقلاب ہمارا سیاسی شروع ہوا تھا تو ہمارے سامنے وہ سارے طاقتور طبقے جو پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے لڑ پڑے، اور ان کی وجہ سے ہمارا تاریخ کی وجہ سے یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کے لیے سیاست میں ہے۔ نہیں، ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اصولیں ہیں، ان کے لیے ہم نے تو شہادتیں قبول کی، لیکن جو وجہ ہے ہمارا سیاست کا، جو بنیاد ہے ہمارے سیاست کا، وہ اس ملک کا عام آدمی کو ان کا حق پہنچانا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں، ہمارا سیاسی مخالف کوئی کٹ پتلی جماعت نہیں ہے، ہمارا سیاسی مخالف کوئی ایسا جماعت نہیں ہے جو ہمارا الیکشنز میں ہمارا سامنا یا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اس ملک کی عام آدمی کو، اس ملک کے غریب ترین عوام کو ان کا حق پہنچانے کا ہے۔ اور میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ملک ایک بحران میں ہے، سیاسی بحران، آئینی بحران، جمہوری بحران، معاشی بحران۔ اب آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں تاکہ ہم مل کے جدوجہد کر سکتے ہیں اور عوام کو ان کے حق پہنچا سکتے ہیں۔ میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب وہ پچھلا حکومت چلا گیا تھا تو سابق وزیر اعظم کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مہنگائی کا مقابلہ کرے اور ٹماٹر اور پٹیٹو کا قیمت لگا دے۔ ہم تو یہی تو بنیاد ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم سیاست میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حکمران کا ذمہ داری ہے کہ اس غریب عوام کو آپ نے تحفظ دلوانا ہے۔ ہر حکومت کا ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح، سب سے زیادہ پرائیورٹی ہم عام آدمی کو، غریب ترین طبقہ کو دینا چاہیے۔ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے ایک ڈاکٹرن تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس ڈاکٹرن کا ایک حصہ بھی یہ تھا کہ اگر ہم نے کٹوتی کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم شروع کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خان صاحب کا مقابلہ، مخالفت اس کی بنیاد پہ، کافی بنیادوں پہ کیا تھا، مگر یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس ملک کے غریب ترین عورتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ جس حکومت نے، جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی،
ان کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی, غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی, اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے اور آج تک یہ انقلابی پروگرام چلتا آ رہا ہے. میں نادرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جرمنی کا جو سفیر ہے, جو نہ صرف سیلاب میں مگر خاص طور پہ یہ ڈائنامک سروے کروانے میں ہمارا مدد آئے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں اور امید ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا رہے گا اور اس ملک کا غریب ترین عورتوں کو فائدہ ملتا رہے گا. ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لانچ کے لیے جو بٹن دبانا ہے اس کام کو کار خیر کو شروع کرنے کے لیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے, تو ہمارے ساتھ یہ لانچ سیریمنی میں اب وہ بٹن دبایا جائے گا. بسم اللہ کرے سر. یو ہیو ٹو پریس دا بٹن. جی جی ادھر نہیں چل رہا تو کسی کو پتہ نہیں. آ گیا ہمارے لیپ ٹاپ پہ, لیپ ٹاپ پہ تو آ گیا لیکن وہاں میسج چلا جائے گا دیٹ اٹ اسٹارٹڈ. تھینک یو جی. لانچ ہو گیا, یہ لانچ ہو گیا ہے. I know. Thank you.